esteemed guest, Ms. Ritu Puri. Mom is my real inspiration for this. Almost अभी 9 years हो गए आपको इस इंडस्ट्री में. What inspired you to step into fashion designing? और वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्रेज हुआ उसका नाम NAM. This is the National American Miss Okay. Beauty Pageant. हाँ. So that was also a turning point for me कि बाहर से कोई सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके आ रहा है. She was the winner of that नाम. Wow. And you Yeah. wear good, you look good, you feel good. It is. Right? From sketching outfits on school notebooks to styling bold statements for real women, meet our esteemed guest, Ms. Ritu Puri, who turned her dreams into designs. A warm welcome to you, Ritu, to our first ever podcast, Swavalambi. How are you feeling today? I'm feeling great. I'm feeling great because I'm privileged that you are starting from me, from my studio. I'm really very honored. Thank you so much, Ritu. And I think today I will get to know the other side of Ritu Puri, right? So let us begin our series. And the first question for you is, what inspired you to step into fashion designing? See, to be very honest, growing up and constantly I have seen that how clothing, impact a person's individuality, a person's personality, and of course the confidence they got after wearing good clothes, right? And my mom is my real inspiration for this. Reason being, when I was young, so she is a good designer, although she doesn't have the degree of fashion designer, but she is a very good designer. And when she used to design clothes for me, and I usually go when I go there for certain party and all, so everybody asked, they asked me ki from where you got these clothes stitched. So my mother, she is the real inspiration. And of course it comes in the genes, from the genes itself, to dress up nicely and all. So yes, of course my mother is my real inspiration to get into this thing. And after 12th I decided that I have to pursue in this stream only. Wonderful. I think who doesn't want to look good? Like when you wear good, you look good, you feel good, right? And I've seen आप इस इंडस्ट्री में आई थिंक ऑलमोस्ट अभी 9 years हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, 9 साल. तो जब आपने स्टार्ट किया था, जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर था और अभी आपका 9th year है, एंड ऑलमोस्ट और 1 साल में आप एक डेकेड पूरा करेंगे इस इंडस्ट्री में, तो क्या चीज़ें बदली है जो आप फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक, अगर आप बता सकें कुछ जो चेंजेस हुए आपके बिजनेस में? From first means when I have started my studio in 2016. That was, I still remember, that was a Gudi Padwa day, 8th of February, right, 2016. So I started my studio in that period. And from the beginning we only concentrate only on the niche clients, means elite client, our good customer. So after that, after over a period of time, I realized that in 2020, that not only we have to concentrate on this segment, we have to concentrate on the normal this thing also. So casual, we started our casual wearing, and of course we have started the uniform unit also. So in that way, from first year we only concentrate on the elite client and all. After that, over the period of time, we started paying consideration, catering all the segments, like from ladies, gents and kids also. And of course we have started our manufacturing unit for the uniforms also. Yes, I can see that growth. You have evolved, as a fashion designer. Yes. And of course, मेहनत तो है ही, definitely. Hard work तो आपका है और वो दिखता भी है, correct? तो ऐसा एक point आता है जहाँ पे आपको
लगता है, हमें लगता है बिजनेस में कि यस, यही मोमेंट है कि मुझे स्केल अप करना चाहिए या एक्सपैंड करना चाहिए। तो आपको वो जो मोमेंट है वो कौन से साल में आपको लगा कि यस, मुझे अभी एक्सपैंड करना है? और एक्सपैंड करते वक्त क्या आपने ऐसे सोचा कि मुझे टीम वाइज एक्सपैंड करना है, या प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड करना है, या फिर मुझे शोरूम नए शोरूम्स, मल्टीपल शोरूम्स ओपन करने हैं? तो कौन सा पार्ट कब आपको लगा कि मुझे बढ़ाना है अभी? Okay, in 2020 when COVID hits, so at that time I was on rent premises, so that premises was on rent. So in COVID also I was the first designer who converted her studio into mask and ppe kit manufacturing unit, right? So Times of India, they covered me for that. So after 2020, when in 21, like unexpectedly I was getting so many orders and all. I was thinking कि कोविड के बाद कम हो जाएगा, बट जब कोविड जैसे ही खत्म हुआ तो मे बी पीपल रियलाइज कि अब हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों पे नहीं, क्लोथिंग, खाने पे ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट करना है, सो दैट वी कैन लिव हैप्पीली। तो अनएक्सपेक्टली बहुत अच्छे ऑर्डर्स आने लगे। तो मुझे हमेशा स्टार्टिंग से एक डर रहता था कि अगर ओनर ने हमें बोल दिया कि नाउ यू हैव टू लीव द प्रेमिसेस, तो इतना बड़ा बनाने का ब्रांड और वो फिर दोबारा से एस्टैब्लिश करने का, तो वो मुझे हमेशा रहता था। तो जब हमें एज एन एंटरप्रेन्योर हमें ऑर्डर्स आने लगे, अच्छे मेजर अब्रॉड से भी ऑर्डर्स आने लगे, तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, इट्स टाइम टू मूव टू आवर ओन प्रॉपर्टी, आवर ओन स्टूडियो। तो हमने 2021 में एंड में दिसंबर में ये प्राइमिसेस बनाया अपनी प्रॉपर्टी। इन टर्म्स ऑफ माई स्टाफ ऑल्सो, मैंने काफ़ी अच्छा स्टाफ रखा जो एक्सपीरियंस्ड है, सब कुछ है। रीज़न बीइंग मुझे यूनिफॉर्म लाइन भी एक्सप्लोर करनी थी और सेगमेंट भी एक्सप्लोर करने थे। तो इन 2021 आफ्टर द कोविड आई मेड माई ओन स्टूडियो, आई एक्सपेंडेड माई स्टाफ ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ मशीन ऑल्सो, प्रेमिसेस बड़ा हो गया, यूनिट बड़ी हो गई, और जो मैन पावर है वो भी। सही में एक्चुअली आपकी एक अच्छी क्वालिटी जो है वो है नेवर गिविंग अप स्पिरिट। Yes. और हर एक एंटरप्रेन्योर में वो होना ही चाहिए, चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, हमें वो चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो कि आपने किया। Yes. और कोविड एक ऐसा पीरियड रहा है हम सबके लिए जहाँ पे हमने नया सीखा, हम खुद हम में काफी सारे बदलाव आए, थॉट प्रोसेस में, अडेप्टेबिलिटी में। तो ये क्वालिटी हमेशा हमें सिचुएशंस सिखाते हैं, और बस हमें वो एक एक्सेप्टेंस रहना चाहिए। एंड आई थिंक आपने फैंटास्टिक किया, आपने उस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, तो which is truly amazing, right? Now coming back to fashion designing, because I'm very curious and I want to know, as a fashion designer, आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब भी आपके पास कस्टमर आते हैं, राइट? क्लॉथ लेके, या उनके माइंड में एक डिज़ाइन रहता है, राइट? एज ए डिजाइनर आपके माइंड में काफी कुछ रहता है, क्रिएटिविटी रहेगा आपको, एंड यू वुड वांट टू शेयर इट विद द कस्टमर्स आल्सो, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द क्लॉथ, वहां पे ही आपको आई थिंक फर्स्ट थॉट यही आता है कि वाओ, ये कपड़ा इस ड्रेस के लिए या फिर इस डिजाइन के लिए सूट करेगा, या इनको इस तरह से, जैसे कि नेक हम करते हैं, वी नेक होता है, राउंड नेक होता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और आपसे बेहतर कोई और जान भी नहीं सकता। तो आप वो क्या चीज़ को ध्यान में रखते हैं जब भी कस्टमर आपके पास पहली बार आता है? A very good question. Being a designer, as a designer, जैसे ही मेरे पास कोई कस्टमर अप्रोच करता है, तो 3 questions I used to ask them, right? What is the occasion? क्या ओकेजन है, क्योंकि हम लोग बहुत फॉर्मल, बहुत लेविश बनाते हैं, और उनकी एक फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, तो वो टोटली डिफरेंट हो जाता है, राइट? व्हाट इज द ओकेजन? आई ऑलवेज पे कंसंट्रेशन ऑन द हाइट, ऑन द कॉम्प्लेक्शन ऑल्सो, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी फिगर कैसा है, कैसे नहीं है, ये हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। प्लस द फैब्रिक, टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक, बिकॉज while designing the dress for my customer,
फ्लो जो फॉल होता है हम्म। फैब्रिक का, वो हमें देखना पड़ता है। जी। और अगर थोड़ा सा हेवी क्लाइंट है तो वी नेवर सजेस्टेड देम लाइक ब्रोकेड फैब्रिक, थोड़ा हेवी फैब्रिक्स वी ट्राई टू अवॉइड। स्लिम फैब्रिक, फॉलिंग फैब्रिक वी सजेस्ट देम। और अगर थोड़े लीन है कस्टमर तो वी यूज टू सजेस्ट देम लाइक थोड़े थिक हेवी स्टैंडिंग मटेरियल में, सो दैट इट कैन गिव वॉल्यूम टू देयर फिगर। सो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारे हाँ, बहुत सारी aspects हैं। बारीकियां हैं। राइट, कलर कौन सा होना चाहिए फैब्रिक का, जी। ओकेजन क्या है, दिन का है कि रात का है, यू नो, पास वाले रिलेटिव है, दूर वाले रिलेटिव। अच्छा, वो भी ध्यान में हाँ, रखना। आपका बेबी गोदी में है तो भी हमें नेक लाइन हाँ, वगैरह और वो कंफर्टेबल रहना ट्रू पड़ेगा। ट्रू ट्रू। यू नो, एज क्या है कस्टमर की। जी। There are so many things which we have to consider. And second thing, the most important, their choice. क्योंकि जैसे आपने बोला कि उनके दिमाग में भी कुछ डिजाइन रहता है, तो उसको लेके और सारी चीजों को ध्यान रख के then we have to design the garment for the customer. अभी हमें पता चला कि आपके जो बेस्ट डिजाइन्स बनते हैं तो काफी सारी मेहनत यहाँ पे रहती है, बहुत, उसके बाद वो सामने विजुअली आता है, पहले तो यहाँ पे छपती है। बिल्कुल, राइट। एनीवे, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। Yeah. अभी तक 9 साल में आपने इतने सारे कस्टमर्स को सर्व किया है, राइट? एंड आई थिंक फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री हो या वैरायटीज ऑफ। सो ऐसा एक आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट अगर आप शेयर करना चाहो कि जिससे आपको लगा कि ये वाओ, ये मेरे लिए सबसे बिगेस्ट माइलस्टोन था मेरे इस इंडस्ट्री का। ऐसे दो तीन जो इंसिडेंट जो मुझे अभी याद आ रहे हैं वो है कि एज आई सेड दैट आई स्टार्टेड माय बुटीक इन 2016, राइट। इन 2018 एक बहुत वेल नोन पर्सनालिटी है गोवा की, मिस्टर प्रसाद पांखर, राइट। तो ही कॉल्ड मी आउट ऑफ अ ब्लू मून एंड ही सेड कि रितु, लुक, आई एम शूटिंग ई कैलेंडर, फैशन कैलेंडर, and you have to come on board as a designer, right? So I said, so me, yes, he said, yes, I'm pretty sure that you will do your best, and I want for my model you should design. So I took it as a challenge because मैंने कभी किया नहीं था कैलेंडर के लिए। इन 2016 अक्टूबर में ही शूट दैट कैलेंडर, और वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्रेज हुआ उसका, बहुत ज़्यादा। तो वो फिर माउथ पब्लिसिटी होती गई एंड सडनली इन 2020 के स्टार्टिंग में एक मुझे कॉल आता है यूएस से कि हाय, आई एम स्मिता, माय नेम इज स्मिता, एंड माय डॉटर, शी इज पार्टिसिपेटिंग, शी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन NAM, NAM, दिस इज द नेशनल अमेरिकन मिस ब्यूटी पेजेंट। तो वहाँ पे मेरी डॉटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं and I want that you design the garment for her. So that was also a turning point for me कि बाहर से कोई social media से influence होके आ रहा है मेरे पास। तो luckily I said okay, fine. So I designed 5 garments for her, gowns for her, and she was the winner of that NAM. Wow. Right? So I was so happy with that. और एक तो आपकी तरफ से अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे को, you know, national, we did international fashion pageant, right? So La Flame Beauty White, तो वो भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी और काफ़ी अच्छा किया था, या एक्सपीरियंस भी रहा है, और इट वाज अ माइलस्टोन आल्सो इन में बिकॉज इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट वी डिड। एब्सोल्युटली, लाइक यू नो, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज तो हमें मिलती भी है, बट सही टाइम पे उसको ग्रैब करना, ओके, अच्छा से लेना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और लिया भी है तो उसको टाइम पे कंप्लीट करना, और उस स्टेज पे ना, ग्लोबल स्टेज पे उसको 100% देना, उसमें टाइम डालना और समझना उस चीज को कि व्हाट इज दी रिक्वायरमेंट। करेक्ट। तो ये सब सारा इतना एक्सपीरियंस होता है जो फिर वहाँ से आपको हेल्प मिलता है, बिकॉज मैंने इन दिल्ली ऑल्सो आई वर्कड अ लॉट। Yeah, before opening this studio in 2016, I was having my own studio in Delhi also. तो वो सारा भी एक्सपीरियंस यहाँ पे था। डेफिनेटली, मतलब एक्सपीरियंस ही हमें आगे बढ़ाता है,
Correct. और डे टू डे लर्निंग, ऐसा नहीं कि 10 साल हो गए तो हमें सब आता है. आई मीन No, no, no. every day is a learning, you know, because trend change होता है मार्केट Yeah, में, राइट? exactly. तो उस हिसाब से भी हमें काम करना काम पड़ता करना है. पड़ता है. वैरायटीज, एक ही टाइप का डिजाइन है तो डिफरेंट फ्लेवर्स, डिजाइन्स, एवरीथिंग it really Everything. matters, Yeah. because that is how I think you stay ahead of the I would say market competition. Yes. But competition एक जगह है, and I think your uniqueness and the way you deal with your clients, Client. the way you provide service to your clients, Yes. so everything is like a package, correct? Yes. So now you have been in this for long, 9 years now, and you know there are many aspiring designers, like, you know, youth especially, Yes. who would want to come in this industry, Hmm. right? So आपका उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा? For the startups and the new upcoming designers, I wanted to tell them, or I wanted to request them. This is through my experience, I can share it with them, right? एक तो ना, I always try to work on 3 C's, like consistency, consumer satisfaction, and like my own creativity. हाँ, तो ये 3 C's मेरे सक्सेस मंत्रा के लिए एक पिलर है, राइट? और न्यू जो नए बच्चे आना चाहते हैं, वो आई वुड लाइक टू से देम दैट नेवर हेजिटेट टू टेक रिस्क इन देयर लाइफ. Always open for new learning, for new innovations, but never hesitate to take risk, because जो रिस्क नहीं लेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा. तो हमेशा हाँ, रिस्क लेने की क्षमता रखो अपनी. और सेकेंड थिंग इज दैट ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, जो आपके माइंडसेट के हिसाब से हैं और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और जो आपके ऊपर बिलीव करते हैं. तो ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ टू देम, विद देम. तो ये मेरे सक्सेस मंत्र हैं और यही मैं बोलना चाहूँगी. डेफिनेटली, मतलब ये जस्ट वर्ड्स नहीं है, ये आपका फाउंडेशन है. Yes. और जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो डेफिनेटली आपका जो बिल्डिंग है वो स्ट्रांग होती ही है. तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और कुछ क्वेश्चंस आंसर किए. ऑफ कोर्स आई वांटेड दिस थिंग टू ब्रिंग आउट सो दैट अदर पीपल, द ऑडियंस, you know, they should also know today अगर रितुपुरी अभी एक ब्रांड है तो किस वजह से है और उनके कोर वैल्यूज क्या है, उनका फाउंडेशन क्या है. तो ऐसे ही हम आप ही की तरह और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके स्टोरीज हम पॉडकास्ट के जरिए शोकेस करेंगे आगे भी. एंड आई एम श्योर आवर ऑडियंस विल love to hear and give their feedback. And from the entire fraternity, I would say from entire WebN, wishing you all the very best. I'm sure you will go more and more, you know, you have to achieve more things now. It's just a beginning, and I wish to see more and more Ritupuri ka store. And of course इतने सारे आपके अचीवमेंट्स हैं और 10 साल हो गए हैं, you know, इतने सारे अचीवमेंट्स के लिए. और so thank you once again Ritu for joining us, and thank you to our audience for watching us, listening to us. Please keep supporting us by giving your genuine feedback. Thank you so much. I'm Sia Sheikh signing off from our first podcast series, Swavalambi.